Hello students, welcome back. Today we are going to discuss a very important thing from what all we have learned till late, that is the questions based on whatever the topics we have covered till now. Because most of the students who have come in contact with me through WhatsApp have been continuously demanding to discuss questions and share. Actually, for me, it was not possible that I would share with a few and the rest would not be having the opportunity to avail it. So, for this purpose only, I have tried and collected as many questions. Also, I have created as many questions I could in order to help you at my level best. This is a kind of an assignment, and I'll be sharing with you a few illustrations, and on the basis of those illustrations, a few unsolved questions. So as I continue, the very important thing you should keep in mind that when you watch this video, take a notebook and a pen and start solving the questions along with the video itself, because most of the examples and illustrations I have already shared with you, and those which I have not shared I have mentioned in this. So in order to learn better and understand the concepts better, you should also solve the things one by one. Starting from the first topic that we discussed is scientific notation. I have discussed the whole you see that there are questions given on this topic. Illustrations I have already discussed in previous parts. You should watch those videos carefully and then try to attempt these questions. The very important thing about this video is, as soon as you will be sending me this, you all have my WhatsApp number first of all, and even if you do not have, you can note it down. That is 7508 298 158. I repeat, 7508 298 158. So as soon as you solve these questions and send it to me through WhatsApp, I'll be sharing a PDF file of solution of all the questions that you will be doing in this assignment, so that you can check your answers, that whether you have done it completely and correctly, and that you have understood it all clear. Next, I have this conversion table. I guess I forgot to mention it in the previous. Some of these I have mentioned in my video and some might be left, so you can note it down from here. This is the conversion table of how to convert unit, like 1 feet is equal to 12 inches, 1 yard is equal to 3 feet, just like that. That 1 angstrom. These are the units of length and these are the units of volume, these being the units of mass. So you can note them down wherever your fair notebook. Many of you have been asking me that, ma'am, do we need to make notes in the fair notebook? Better you should start making notes in your fair notebook without wasting your time, just because you do not have any idea that school will open after 15 days or after 2 months. So as soon as we'll be covering the topic, you should have proper notes of your own. Maybe we'll provide you later. We are definitely going to discuss things one more time, but till then you should start doing your work. Then next I have these question based examples based on these measurement units only. So you should see these questions, like go to the question, then try solving them, because the illustrations have been already discussed. Here one more time I have given, and then you should solve the unsolved questions. Then you have for significant figures. ये बेटा ये मैंने आपको बहुत अच्छे से already एक वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है. ये एक्सप्रेशन इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑल दीज क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे उसके आपको सॉल्यूशंस कंप्लीटली मिलेंगे ओनली आफ्टर यू सेंड मी योर सॉल्यूशंस ऑन व्हाट्सएप. नेक्स्ट मेरे पास इसी के ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी एक्सप्रेस इट इन द डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स. देन आई हैव थर्ड स्लाइड फॉर द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए मैंने आपके साथ for the same reason, because आपकी maximum practice हो and you develop confidence over the subject. Then laws of chemical combination, इसका तो एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं, तो आप उसको पहले देखें, फिर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें जो नेक्स्ट 1 to 3 4 and
फोर स्लाइड्स में जो मैंने पीछे आपके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सब आप सॉल्व करें एंड मुझसे सॉल्यूशंस लें उसके बाद. देन आई हैव फॉर एवरेज एटॉमिक वेट, देन इज फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दीज 2 slides. तो बीइंग ऑन अ शॉर्टर नोट, मैंने इन सब क्वेश्चंस को कंपाइल किया है. ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया आप लोगों के लिए, सो दैट यू लर्न मोर ऑफ इट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज, इस स्लाइड में मैंने एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी बेटा क्या होता है? वेपर डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गिवन गैस to the density of hydrogen gas. We know that density is equal to mass upon volume. Volume की जब हम बात करेंगे दो गैसेस के रेशो के बीच में, पहली बात तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट इवन इफ मैं मान के चल रही हूँ मेरे पास 2 गैसेस हैं, तो उनकी वॉल्यूम जो होगी वो कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट यानी मैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम की ही बात करूंगी दोनों गैसेस के केस में. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा. तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो अगर मुझे मान लो नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी निकालनी है, यानी वेपर डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन गैस की, तो इसका क्या मतलब है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वो क्या आ जाएगी? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 ग्राम. सॉरी, यहाँ पे मैंने 14 मेंशन कर दिया. नाइट्रोजन का मास होता है 28 ग्राम्स. यहाँ पे बेटा आएगा 28 ग्राम्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 14 ग्राम्स. कितनी आ जाएगी? ओ सॉरी 14. और बेटा इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेशो किसका आ रहा है? या तो दोनों की डेंसिटी का आप कह सकते हो, या दोनों के मास का कह सकते हो. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों में सेम चीज होती है, तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि वो हमारे पास एक रिलेटिव टर्म हो जाती है, और वहां पे वो क्वांटिटी हमारे पास यूनिटलेस आती है. इज दैट क्लियर? तो जैसे मेरे पास ये दे रखा है, ये सेकेंड वाला जो है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू CH4 इज व्हाट? मीथेन. तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीथेन. आई होप आई एम क्लियर टू यू इनफ. सो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट this is for your practice, for your assessment, and what I want from you all is the maximum answers that you should reply me back with on my WhatsApp number. If you have not noted it already, you can note it down again, and the number is 7508298158. तो एक बार हम अगर दोबारा नजर डालें सब टॉपिक्स पे कि आपको इनके रिवीजन के लिए कहाँ से लिंक अप करना है, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया था. फिर मैंने आपके साथ मेजरमेंट यूनिट्स डिस्कस की थी. देन मैंने आप लोगों के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस किए थे. तो वन बाय वन एज यू विल फाइंड द सीक्वेंस ऑफ वीडियोस विद यू विल बी एबल टू रिलेट. देन मैंने आप लोगों के साथ ये 3 स्लाइड्स जो मेरे पास क्वेश्चन हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हैं. देन मैंने आपके साथ 3 पार्ट्स किस तरह से, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो एंड थर्ड वाज फॉर न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट 2 में तो मैंने आपके साथ डेफिनेशंस एंड इलस्ट्रेशन डिस्कस किए थे. थर्ड में कंप्लीटली क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड नहीं किए हैं. मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें प्लीज. एंड देन यू हैव दीज. तो आप क्या करेंगे? आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप इसमें से क्वेश्चंस नोट करेंगे, एंड देन यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. यहाँ पे मैंने एवरेज एटॉमिक वेट, इसका मैं ऑलरेडी इलस्ट्रेशन दे चुकी हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. और क्लोरीन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल और दिया है मैंने आपको.
देन बोरोन और कार्बन के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट ये सब टर्म्स रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी। एटॉमिसिटी भी, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मैं डिस्कस कर चुकी। देन ये सब फिर से वही एवरेज एटॉमिक मास के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज वेपर डेंसिटी। तो ये आप नोट कर लेंगे और आई विश कि आप ये वीडियो को मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। वील कैच अप फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो from the very new topic, that is mole concept, which is a very important topic in regard of this chapter as well as whole chemistry point of view, and that will be taken by Pradeep. Thank you.